First your solution starts. Scale you have given, you have chosen the scale of 1 centimeter is equal to 1 knot. And now I plot my force 045. It is very simple कि यार यहाँ मैं फोर्स को कैसे प्लॉट करूँ. यू कीप योर प्रोटेक्टर और डी जिसे आप कहते हो, यहाँ आपने जो पॉइंट लगाया था उसका सेंटर में आपने ये अपना प्रोटेक्टर रख दिया. एंड नाउ 045 पे हम पॉइंट लगाते हैं. एंड देन आई ड्रॉ दिस लाइन 045 की. इसको जितना भी लंबा कर दीजिए. So I hope one vertical line, point A, and now it is 15 knots. That means 15 centimeters आप इस लाइन पे काट सकते हैं. So I will take say in inches. I have taken in inches, so I cut it. Say 6, 7, 8. This is about 9. चलो अंदाजे से okay. So this I cut it 045 by 15 knots, and I call this point T. So AT, and please इसके साथ ही आपने ये एरो लगा देना so that we don't make a mistake. This is your course 045 degree 15 knots, and you are going in this direction. Apparent wind I know from 100 20 knots. Now, if apparent wind is given, then you draw that from A. If true wind direction is given, then I draw from T. Now apparent is given, so I go to point A and I draw in a direction of 100. So 100 again I keep same compass. अपना जो protector है उसको मैं इसी point पे रखता हूँ, and then from here I draw 100. So this is 90 and this is 100. Now same way इन दोनों पॉइंट्स को I can just draw this. Now this is direction of 10. That means the apparent wind is coming from 100. So the direction becomes like this. And you know the speed also of apparent wind, say 20 knots. So 20 knots, ये 15 था, तो 20 थोड़ा सा इधर होएगा. So I call this OA. OA means apparent winds. OT means true wind. तो जरा ड्रॉ कीजिए अपने नोटबुक्स पे. And then I join these 2 points. इन दोनों को मैं अगर ज्वाइन करता हूँ OT, what I basically get is the direction of true wind. Now true wind will be, please make sure it is not TO, it is OT. OA and similarly OT. Now I can measure this. Now how to measure this angle? Sometimes this becomes a problem to you कि how to measure this angle. So it is very simple कि मैं T से मैंने ये angle को measure करना है. So I draw a vertical line at T. This is north, this is south, 0, and what I am interested is to find out this angle. Understood? So मेरे को ये angle निकालना है, ये कितना है. Same way I can keep my protractor like this. इसी T point पे center of the protractor here, और this D जिसे आप कहते हैं, तो उसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, and then I will find out ये कितना angle है. So आप अपने प्रोटेक्टर से very easily you can see that it is coming about 147 or something like that. तो ये जितना भी एंगल आपके पास आ गया, so you can write whatever value you get. मैं थोड़ी सी रफ approximation है, so इसका answer is basically yes. I am also getting say 147, clear to 147, and I measure this on the scale. जो भी आपने scale choose किया था अपना, उस पे कीजिए, एंड ये आपको स्पीड दे देगा जितने सेंटीमीटर आए कन्वर्ट. सो नाउ व्हेन यू हैव टू इसको सेलेक्ट करना है, देन यू हैव टू सी ये कौन सा एंगल है, इजंट इट. नाउ इट इज बेसिकली अपीयरिंग टू यू
90, यहाँ पे 90 हो गया, 90 से नीचे आप जैसे ही जाओगे 147, दैट मीन्स द ट्रू विंड इज कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन। तो प्लीज ये एरर नहीं करनी, दैट अपोजिट नहीं ले लेना है। इसीलिए साथ साथ एरो लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक व्हेन यू हैव ड्रॉन द एरोस। So I don't think you will be able to make mistake. देखिए आपका कितना आंसर आता है, just practice this. सर ये डायरेक्शन बिल्कुल एक्यूरेट आना ही चाहिए क्या? बच्चे एक्यूरेसी अगेन है कि यस मे बी 1 डिग्री 1.5 डिग्री का एरर आ सकता है। आपकी एक्यूरेसी आपकी प्रैक्टिस पे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे मे बी हाफ अ डिग्री 1 डिग्री तक एरर हो सकती है, डजंट मेक अ डिफरेंस। 17 नॉट्स की बजाय हो सकता है आपका 16.9 आए या 17.2 आ जाए, डजंट मेक अ डिफरेंस। प्रिंसिपली आपकी एरर नहीं होनी चाहिए। नाउ इट इज वेरी सिंपल, ना ज़्यादा हमने खिचड़ी पकानी है, इट शुड बी क्लियर द एग्जामिनर हु इज वाचिंग एंड योरसेल्फ यू आर वाचिंग, क्या 045 ये मेरा AT, ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। OA दिस डायरेक्शन, OT। अब मैंने नीचे आंसर लिखना है आपका, नो नीड टू रिपीट। सम ऑफ यू, आई हैव नॉट यू, पास्ट पेपर्स में पीपल हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग द क्वेश्चन आल्सो, यू आर वेस्टिंग टाइम। स्ट्रेट वे आपने यहाँ पे लिखना है सोल्यूशन और क्वेश्चन नंबर 2 एंड स्ट्रेट वे स्टार्ट विथ सोल्यूशन, स्केल, मेक अ स्केच एंड देन answer whatever he has asked. So he has asked find out the direction of true wind, so your answer should be the wind direction or the true wind direction and speed is equal to 147 degrees true and 17 knots. मतलब that's all. सर एंगल में तो बहुत डिफरेंस आ रहा है। कोई बात नहीं, आप अभी कर रहे हो, 2-3 क्वेश्चन करेंगे एक्यूरेसी आ जाएगी, ठीक है। सो सिर्फ आइडिया इज, एज आई टोल्ड यू, द आइडिया इज टू गेट यूज टू, आपके पास जिस टाइप की भी जो भी डी या प्रोटेक्टर है वो किस टाइप का है। मैंने ये रखा है कि जिसके ऊपर आई कैन ड्रॉ, अगेन बीच में गैप है, सम टाइम यस थोड़ी बहुत आपको शुरू में प्रॉब्लम आएगी। सो इसीलिए दैट इज व्हाई द प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, ताकि एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, 15 एक बार दोबारा करो। यस सर, बस कल एक बार बता दीजिए सर। ओके सर बस इसी पे बता दीजिए, बस लिख। या so what we have done, हमारा क्वेश्चन था द शिप इज स्टीयरिंग 045 by 15 knots, apparent wind is from 100 into 20 knots की apparent wind I can see on the ship, find out the direction and speed of true wind. So what I do, I selected a scale that 1 centimeter is equal to 1 knot and then I draw one vertical line and उसके ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया सेंटर पे, here I keep my protector like this and then I draw 045, so this angle is 045. So please ज्योमेट्री में नहीं जाना आपने, ज्योमेट्री में this is 00 and then वहाँ पे 45 नहीं, हम अपनी जो हमारी कंपास चलती है हम उसी तरह से we are used to that, so हम उसी एंगल को this is 045 यहाँ मैंने लगा दिया and you draw a line, this is your AT। अभी T क्या है 15 नॉट्स, तो 15 सेंटीमीटर में कंपास रखता हूँ या स्केल से 15 नॉट्स पे यहाँ पे काट देता हूँ, सो दिस बिकम्स पॉइंट T। So AT is the course and speed. Now the second thing given is apparent wind direction 100. I again keep my protector here, D को यहाँ पे रखता हूँ and now I draw ये वाला एंगल 100 डिग्री मैंने D से ड्रॉ किया and I draw a line। अब मेरे को इसकी स्पीड भी पता है 20 नॉट्स, ए पे कंपास रखी 20 सेंटीमीटर काट दिया, तो आपकी कंपास छोटी है, यू कैन डायरेक्टली कीप द स्केल आल्सो, आपका स्केल बड़ा है तो आप उसको 20 सेंटीमीटर काट दीजिए। ओ ए को आप ज्वाइन कीजिए, दिस इज द बेसिकली डायरेक्शन ऑफ योर
ट्रू विंड। मेजर कैसे करेंगे, टी पे ले लीजिए वर्टिकल लाइन, बेसिकली मेरे को ये एंगल निकालना है, इसको मेजर करना है। सो इट इज सिंपल, मैं इसको ऐसे रखता हूँ एंड देन आई नो दिस इज 90 एंड 90 से हाउ मेनी डिग्रीज नीचे, दिस इज बेसिकली 90। इससे ये वाले एंगल को आप पढ़ सकते हैं। ओके क्लियर? यस सर क्लियर सर, थैंक यू। वेरी गुड। तो इसको कर लीजिए। इसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें ओके ट्रू विंड की डायरेक्शन दी है, एपरेंट विंड की डायरेक्शन निकालनी है। साथ साथ करते जाइए। ओके आई राइट द क्वेश्चन, यू आल्सो स्टार्ट डूइंग, आई विल आल्सो डू ऑन द बोर्ड। कहीं आपको समझ नहीं आ रहा पॉइंट आउट के सर ये कैसे ड्रॉ करना है, ये कहाँ से आएगा, देन वी विल बी एबल टू सी दैट। ओके शैल आई प्रोसीड फॉर क्वेश्चन 2? यस सर। ओके सर ओटी ट्रू विंड हो गया ना सर, ओटी OT, yes, OT, always OT. OA, again I write here. आप चाहे लिख भी सकते हो, बट आपने यहाँ दिखा दिया, आप अपने आंसर शीट पे भी लिख सकते हो। AT is equal to course and speed of the ship. OA is the direction of apparent wind, and OT is the direction of true wind. Please remember OT, TO या AO नहीं आना, AT is the course and speed, OA is the apparent and OT ये टर्मिनोलॉजी आपने चेंज नहीं करनी। ओके चले नेक्स्ट। यस सर। ओके Yes, sir. okay very good. So let's see what is the next question. He says now your course is 200 degrees true, speed 14 knots. Now the true wind direction is given to you. True wind is from 300 and speed of true wind is 18 knots. Find speed and direction of apparent wind. मीन्स OA आपको निकालना है। तो इसको जरा ट्राई कीजिए। ऊपर दिखाई नहीं दे रहा सर, हाँ जी दिख नहीं रहा, ऊपर ऊपर सर, यस सर नहीं दिखा। Sir, दिख रहा है। यस सर हो गया सर, थैंक यू सर। So simply first आपका solution के लिए you write scale 1 centimeter is equal to 1 knot. My course is 200, so आपको थोड़ा सा होना चाहिए 200. This is 180, so 200 will be somewhere in this direction. So मैं एक vertical line बनाता हूँ। इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं A एंड यहाँ से मेरे को 200। सो इतनी आपके बच्चे आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि दिस इज बेसिकली नॉर्थ साउथ। सो ये 180 है, सो 200 के लिए इफ आई कीप माई D लाइक दिस, तो 200 मेरा कहाँ पे आएगा, तो थोड़ी सी एक्यूरेसी में फर्क रहेगा। दिस इज 180, थोड़ा एक्यूरेट हो जाता है। 180, 190, 200, 20 isn't it? 20 or 20 degrees from 180,
अब इस लाइन को मेरे को ड्रॉ करना है। दिस इज बेसिकली योर कोर्स इन अ डायरेक्शन ऑफ 200। तो यहाँ पे आप एरो एंड 200 बाय 14 knots। नाउ यू आर शोइंग व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, एंड लिखने से आपको भी कंफ्यूजन नहीं। जैसे ही आपने लाइन ड्रॉ की, एरो लगा दिया, नाउ यू नो दिस इज द कोर्स। अब मेरे को टी पॉइंट ढूंढना है। ये था, टी इज 14 knots मीन्स 14 सेंटीमीटर्स। एग्जाम्पल चलो हम यहाँ ले लेते हैं कि हमने 14 सेंटीमीटर्स यहाँ लिया, तो ये मेरा पॉइंट बन गया टी। ट्रू विंड 300, ए एंड टी है। अब मेरे को पता था ट्रू विंड मीन्स ओ टी, आई गो टू पॉइंट टी। अब यहाँ से मेरे को 300 की डायरेक्शन ड्रॉ करनी है। सो नाउ आई नो दिस इज वेस्ट 270, ईस्ट दिस इज ईस्ट वेस्ट, इजंट इट? 270 यहाँ हो गया, तो 300 ऑलमोस्ट अबाउट 30 डिग्री इससे ऊपर। तो अगेन मैं अपनी कंपास को जैसे भी आप रखना चाहते हो, और यू वांट टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे भी आपको कन्वीनियंट है कि यार मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके 30 डिग्री ऊपर से ले सकता हूँ। तो चलो ऐसे करके नाउ आई कीप माय कंपास हियर, एंड यहाँ पे 30 डिग्री 10 20 10 20 30। तो ये आपका था 270, एंड 270 के बाद 30 मीन्स 300। तो अब मैं अगर इस पॉइंट को ड्रॉ करता हूँ, आई कैन ज्वाइन करता हूँ, सो दिस बिकम्स फ्रॉम हियर this is your 300 direction. The true wind is coming from 300, isn't it? So it will be, arrow will be like this. अब O जो है 18 knots, चाहे आप इस लाइन को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, तो ये मेरा 14 था, 18 थोड़ा इससे बड़ा होगा, तो ये मेरा पॉइंट ए आ गया। तो यहाँ पे आपको मुश्किल नहीं आनी चाहिए। अगेन ये पॉइंट मैंने निकाल लिया था टी। आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन भी लगा सकते हो एंगल निकालने के लिए। अगेन आपने वर्टिकल नॉर्थ साउथ की लाइन लगाई, दिस इज 180। यहाँ से मेरे को ये जो एंगल है बेसिकली टोटल राइट फ्रॉम हियर, दिस एंगल इज 300, isn't it? एंड ड्रॉ करने के लिए व्हाटएवर वे यू फाइंड कन्वीनियंट, चाहे मैं ऐसे रखूं 180, सेम 180, 270, 280, 290, 300 तक भी वहीं पे आएगा। तो एक ही फॉर्मूला वर्टिकल लाइन का नॉर्थ साउथ ड्रॉ कीजिए 300, एंड द ट्रू विंड इज कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन 300 बाय 18 knots। ये मिस्टेक नहीं आपने करनी, एंड इट इज कॉमन कि हम ये एरो ऊपर लगा देते हैं। नो, शिप इज स्टीयरिंग दिस वे 200, ट्रू विंड यहाँ। अब इन दोनों लाइंस को आप ज्वाइन कर दीजिए, ओ एंड ए। ओ एंड ए को मैंने ज्वाइन किया, तो मेरे पास क्या आ गया? अगेन ओ ए, ए ओ नहीं, ओ ए। इसको आप मेजर कर लीजिए। सो दिस इज अबाउट 270, 270 से फ्यू डिग्रीज नीचे। देखिए कितना आता है आपका आंसर। कौन सा एंगल सर? ओ को ओ फाइंड आउट करना सर। या ये जो एंगल है, तो ये एंगल आप यहाँ मेजर कर सकते हैं। ये वाला एंगल बेसिकली यहाँ से ये, यस सर। दिस इज 180 हो गया, यहाँ तक 180। आगे यहीं से मेजर करता हूँ, ये मेरा 180, एंड ये आ गया आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 72। So 80 plus 72, say about 252. Wind is coming from 252, isn't it? So इसका देखिए आपका करेक्ट आंसर कितना आता है। एंड स्पीड के लिए मेजर दिस लेंथ, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, उतनी नॉट की आपको ये स्पीड मिलेगी।
ये इम्पोर्टेंट है। साथ साथ आपका जो डायग्राम बनाते हो सो दैट यू डोंट फॉरगेट, एंड इसको सीधा भी लिख सकते हो, देयर इज नो हार्म। एंड ये जो भी आपकी डायरेक्शन आएगी जस्ट चेक आउट द 252 into maybe 20 knots, and answer में the direction of apparent wind and all that you can write here. So now it is indicated सर डिफरेंट बहुत आ रहा है सर। हाँ जी 250 into 18 नोट्स आ रहा है सर। कोई बात नहीं, ये तो मैंने अंदाजे से लिखा है। आई एम नॉट श्योर, आपकी वैसे तो बुक में है, बड़ा साहब की बुक अगर आपके पास है उसमें आंसर है, दिस इज द दिस थिंग इज हियर, मैंने तो रफली लिया है। नहीं सर, मेरा आ रहा था एग्जाम में अगर ज्यादा डिफरेंस हुआ तो पूरा गलत हो जाएगा। हाँ जी, हाउ मच यू आर गेटिंग आंसर, हाउ मच इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अपैरेंट विंड? 250 into 18 knots सर। ओके 250 into 20 knots, 18 knots, okay, anybody else? Sir, 259 into 20.6 knot. 259 into 20.6. Uh, 258 into 20.8 knots. ओके आई थिंक इस 258 259 जो है ज्यादा करेक्ट आंसर दिख रहा है। मेरा 255 है। One minute, I'll show you correct answer. Yeah, 258 20.8, 259 rather, 259 20.8 is the correct answer. सर थोड़ा पॉइंट का डिफरेंस चलता है ना? Yeah, 1-2 डिग्री डजंट मेक अ डिफरेंस, तो थोड़ी सी एरर रहेगी, इतनी एक्यूरेसी नहीं है पर ज्यादा नहीं है। तो एग्जाम में भी चलेगा, मतलब गलत हो जाएगा ये? नहीं गलत नहीं, थोड़े से मार्क्स आपको सिर्फ, अगर 12 मार्क्स का है तो हो सकता है 1 या 2 नंबर काट दे। तो उसने जो एक्सपेरिमेंट उसमें उन्होंने, जैसे अगर मैंने क्वेश्चन दिया है तो मैं अपनी एक्यूरेसी से करता हूँ तो मेरी एक्यूरेसी में भी थोड़ा फर्क हो सकता है। सो 1-2 डिग्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर प्रोसेस अगर सही रहेगा तो करेक्ट, प्रोसेस सही रहना चाहिए ना। यस 10 डिग्री नहीं होना चाहिए कि अब आंसर एग्जैक्टली से अबाउट 259 into 20.6 है और मेरा आंसर आ रहा है 248, 10 डिग्री तो काफी एरर हो गया ना। 1-2 डिग्री ठीक है, 257 आ गया, 261 आ गया, 250, सर 255 आ जाता है into Yeah. 20। उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट वे अगेन आई एक्सप्लेन टू यू, आई एज आई एडवाइज्ड यू, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे इट इज अगेन लाइक मूविंग अ पैरेलल रूलर। जैसे आपकी प्रैक्टिस है कोई उसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है, इट इज ओनली द प्रैक्टिस। आजकल तो आप पैरेलल रूलर यूज ही नहीं करते, सारा कुछ खत्म हो गया। तो इवन इफ यू आस्क मी, द फर्स्ट डे आई हैंडल द पैरेलल रूलर, द फर्स्ट टाइम आई हैड टू प्लॉट अ पोजीशन, कैप्टन साहब वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी ऑन द चार्ट टेबल, वो वैसे ही गलत हो जाता, वैसे हाथ काम। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फिर जब आप प्रैक्टिस करते हो चार्ट वर्क में, आप देखो प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, इमीडिएटली रूलर को कैसे शिफ्ट करना। ओके तो इस चीज़ में वरी नहीं करना, बट एक चीज़ रखनी है कि यार मेरे को प्रैक्टिस करनी है, बस दैट्स ऑल। एंड प्रिंसिपली आपने समझ लिया यार कहाँ से कौन सा एंगल, कहाँ से क्या, अपोजिट नहीं कर देना इसको, 180 डिग्री अपोजिट नहीं करना। और विंड ट्रायंगल में बिकॉज लॉट ऑफ एग्जामिनर्स दे फर्स्ट सी योर विंड ट्रायंगल कोडिंग डिकोडिंग, अगर वो कहता है यार इसको विंड ट्रायंगल ही नहीं आती, इसको मेट्रोलॉजी क्या पड़ेगा, तो नेगेटिव हो जाते हैं पहले से। ठीक है, तो इसके लिए
सिंपल है, कोई साइंस तो है नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस। चलो नेक्स्ट करें, सबका हो गया? Yes, Yes, sir. चलो गुड। तो नेक्स्ट अगर आपके पास भी बुक है तो कोर्स इज 160, स्पीड 10 नॉट्स, डायरेक्शन ऑफ विंड ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्विंग लाइन ऑफ वेव्स। अब वो क्या कहता है, नेक्स्ट पे जाते हैं। Now he has given you the course is 160, speed 10 knots, course 160 by 10 knots, डायरेक्शन ऑफ विंड ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्विंग लाइन ऑफ वेव्स। अब लाइन ऑफ वेव से हमें कौन सी डायरेक्शन मिलेगी, एपरेंट डायरेक्शन या ट्रू डायरेक्शन? True, sir. करेक्ट, ट्रू डायरेक्शन। यस्टरडे हम जैसे देख रहे थे बाय लुकिंग एट द सी, इफ आई लुक एट द सी सो आई कैन सी दिस इज द एक्चुअल ट्रू डायरेक्शन ऑफ द विंड। सी हॉर्सेस किस तरफ से आ रहे हैं, now he says that means the direction of the, by looking at the direction of the waves, so you know true wind direction is from west, 270 true, and wind speed by anemometer। अभी wind speed जो है उसने wind speed by looking at sea, very difficult, I can't make out, I can only compare। if wind force 4 है 5 है, फिर I Beaufort scale पे जाता हूँ, then I can estimate, but मेरे पास anemometer है, so wind speed by anemometer उसने आपको दे दी 18 knots। find out the speed of true wind, what is the direction and force of wind to be entered into the ship's logbook। तो ship's logbook में हम क्या एंटर करेंगे, एनीमोमीटर से इट इज 17 नॉट्स नॉट 18, wind speed obtained by anemometer 17 knots, course and speed is given। now you have calculated the true wind direction is westerly 270 से, and wind speed by anemometer is so much। तो इसको करने के लिए will you attempt or you want me to do, एक अटेम्प्ट मारोगे? सर ये कर लो, इसके बाद वाला अटेम्प्ट। चलो ठीक है। सो इसका वो कहता है कोर्स कितना आपका 160, isn't it? तो कोर्स इज 160। तो मैं वर्टिकल लाइन लगाता हूँ, पॉइंट ए लिया, isn't it? सो 160 नॉर्मली, अभी मेरे को आइडिया है दिस इज 180, सो इसके 20 डिग्री ऑन द लेसर साइड। हम यहाँ से 10 20, तो दिस विल बी से 160। तो मैंने ये 160 की लाइन लगा दी, दिस इज माय कोर्स इन डायरेक्शन ऑफ 160। मैंने इसको पॉइंट ए लिया, स्पीड इज 10 नॉट्स, मैंने इसको 10 सेंटीमीटर काट दिया यहाँ से स्केल से रख के, ओके 10 सेंटीमीटर। मैं इसको साथ ही लिख देता हूँ 160 बाई 10 नॉट्स। इतना अपने साथ साथ कर दिया, नो चांसेस कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं। 80 एरो भी लगा दिया एंड यहाँ मैंने डायरेक्शन भी लिख दी। जब आप डायरेक्शन लिखोगे तो कहीं गलती हो रही है तब दिख रहा है 160, हाँ ठीक है यार 160, ये 180 होता है, 160 थोड़ा सा इधर से होगा। ट्रू विंड फ्रॉम 270, वेरी सिंपल। ट्रू विंड मीन्स आई हैव टू गो टू टी एंड टी से मैंने 270 लगाना है। तो 270 इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, मैं इसी आपके पैरेलल लेता हूँ, ये मेरा 270 बन गया। Isn't it? So this is my 270 direction, ये मैंने लगा दिया। I don't know the speed but I know this t is 270, so this is 270, speed I don't know। अब उसने मेरे को क्या किया, एनीमोमीटर की स्पीड दे दी है, कितनी दी है 17 नॉट्स। दैट मीन्स यहाँ जो पॉइंट O है वो यहाँ से 17 नॉट्स, तो यहाँ मैं कंपास रखता हूँ एंड 17 सेंटीमीटर या जो भी आपने स्केल लिया है उसको मैं काट देता हूँ। यहाँ से रख के आई ड्रॉ एन आर्क विद द कंपास, दिस इज 17
सेंटीमीटर 17 नॉट्स की मैं इस लाइन पे काटता हूँ, दिस बिकम्स योर पॉइंट ओ। अभी मैं इसको अगर ज्वाइन कर दूं ओ ए, तो ये आपकी एपरेंट विंड है। नाउ ही वांट्स व्हाट लॉगबुक एंट्री विल यू मेक। तो लॉगबुक में हम क्या लिखते हैं बेसिकली, विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। नॉर्मली वी राइट द विंड फोर्स, इजंट इट। अगर उसने पूछा है आपको कि लॉगबुक एंट्री क्या बनाओगे, तो शिप्स लॉगबुक में हम बेसिकली बिफोर्ड स्केल के अकॉर्डिंगली लिख देते हैं, इजंट इट। तो कौन सी आ जाएगी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड कितनी आई जरा देखिए, हाउ मच स्पीड यू गॉट दिस। इसकी तीनों की निकालिए, इसकी भी स्पीड डायरेक्शन आपने लिख ली है, या यहाँ पे आपको 17 नॉट्स पता है बट यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, सो यू कैन मेजर द डायरेक्शन। स्पीड यहाँ पता है, यहाँ डायरेक्शन पता है, स्पीड नहीं पता। (17.6 knots is the true wind speed. सर 17.4 आ रही है। वेरी गुड। अब लॉग बुक में हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखा होता है डायरेक्शन एंड फोर्स, इजंट इट। आपकी लॉग बुक में अगर आप देखिए, तो आई थिंक अभी तक लॉग बुक चेंज नहीं हुई, फ्यूचर में शायद चेंज हो जाए। तो ये जो मेरे कॉलम होते हैं, यहाँ पे लिखा होता है डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन, एंड यहाँ पे होता है फोर्स, इजंट इट। तो डायरेक्शन मेरे को पता है, इट्स वेस्टर्ली। अब 17.4 या 17.6 इफ यू गो टू ब्यूफोर्ड स्केल, आपके पास अगर वेदर कोड है तो वेदर कोड में ब्यूफोर्ड स्केल दिया होगा। वेदर कोड आपने साथ रखना है एग्जाम में। सो इफ दे अलाउ यू टू टेक योर वेदर कोड, टेक इट। इफ दे सप्लाई, समटाइम्स एमएमडी सप्लाई देयर ओन वेदर कोड, बिकॉज सो वेदर कोड में अगर मैं देखता हूँ 17 नॉट्स की विंड जो है, कौन सी फोर्स आएगी जो कल हम पढ़ रहे थे, मीन स्पीड 5 सर। Okay, very good. So logbook entry will be westerly, west by force 5. 5 की बजाय लिख देना force 5. That is what you write. Normally we write, अगर logbook में देखिए तो force 5 ऐसे ही लिखते हैं। तो आप अपने आंसर में उसको थोड़ा इलेबोरेट करके logbook entry I will make और will be west by force 5. बट ये आपने शो करना है दोनों तीनों चीजें। ये कितनी आई, 270 by 17.5, दिस इज बेसिकली वेस्ट बाय फोर्स 5 आंसर। तो इसमें क्या था, कोर्स दिया था, विंड डायरेक्शन आई ऑब्जर्व फ्रॉम द सी वेव्स, द डायरेक्शन ऑफ द सी वेव्स। आई कुड नॉट एस्टिमेट द स्पीड, एनीमोमीटर से मैंने स्पीड ली और मैंने ये कैलकुलेट कर ली 17.6। यहाँ से कंपास रखी एंड जितनी स्पीड दी थी उतना मैंने इसको काट दी। चलो देखिए कितनी आती है आपकी स्पीड, ट्रू विंड की स्पीड कितनी आई, 17.6 आ रही है, 17.4, 17.8,
सर 230 into 16.2 आया सर. What is that? 230 apparent wind is it? Yes sir. Okay, ठीक है. apparent आपकी 230 into 16.2. ये 16.2 कैसे आ गया? ये तो आपने 17 काटा है. This was given to you. 17 नॉट एनीमोमीटर की स्पीड दी हुई है, तो आपने क्या किया? आपने ड्रॉ नहीं किया. Yes, यूजर स्टेप का Yes sir. Yes sir. 17. सो डायरेक्शन आपने ठीक है, जो भी आई आपकी 230, ये तो 17 ही रहेगा बिकॉज आपने 17 सेंटीमीटर काटा. ये निकालना है आपने 270. ट्रू विंड की स्पीड आपको निकालनी है. ये वाली डायरेक्शन आपको निकालनी है. ये डिस्टेंस 18 आ रहा है सर. 18 नॉट्स. कोई बात नहीं, ये वेस्टर्ली वाला ना, थोड़ा बहुत फर्क रहेगा आपका. 17.6 18. सो अगेन यू हैव टू सी ब्यूफोर्ड स्केल में 18 नॉट्स के अगेंस्ट आपकी फोर्स कितनी दिखाता है, विंड फोर्स कितनी दिखाता है. आई थिंक इट्स फोर्स 5. माइनर्स हैंडबुक में दिया है सर. हाँ जी, माइनर्स हैंडबुक में उसमें होगा सर. मेरे पास है, देखता हूँ. हाँ. अदरवाइज आपकी वेदर कोड जो है, छोटी सी बुक है ना वेदर कोड की, एक रेड कलर की. यस सर. हाँ, उसमें भी ब्यूफोर्ड स्केल दिया होगा. वो बुक आपको अलाउड होगी, या वहाँ से एमएमडी में वो वाली बुक देंगे आपको इस एग्जाम में. वेदर कोड विल बी गिवन टू यू. और दे से वैसे तो आप अपनी साथ ले जाइए बैग में डाल के. इफ दे डोंट अलाउ कीप इट आउटसाइड. तो नॉर्मली पहले अलाउ करते थे, अब वो कहते हैं कि यार आपने अंदर कुछ उसमें लिख के अपने साथ ले गए फॉर्मूला, तो इसके लिए उनका भी कहना ठीक है. सो दे प्रोवाइड यू द एल्मनेक और दे प्रोवाइड यू ऑल दिस वेदर कोड देयर. बट ऐसा नहीं है, समटाइम जैसे कि अच्छा भी आप अपना लेके आए हो, समटाइम द एग्जामिनर सीज कि अच्छा अपना वेदर कोड है, उसको चेक कर लीजिए, कहीं कुछ लिखा नहीं है, ओके यू कैन यूज. ऐसा भी हो जाता है. एनीवे गेट यूज टू दैट वेदर कोड. हमने उसको भी, उसका भी क्वेश्चन है, करेंगे. तो उसके अंदर भी ब्यूफोर्ड स्केल दिया है. नॉर्मली 17 नॉट्स के 17-18 नॉट्स इज अ फोर्स 5. चलो नेक्स्ट वाला कर लें एक आज के लिए. सबका हो गया ये? एनीबॉडी एनी डाउट? सर ये कैसे देखना है ब्यूफोर्ड स्केल? ब्यूफोर्ड स्केल में अगर हैव यू गॉट द ब्यूफोर्ड स्केल? यस सर. ओके, ब्यूफोर्ड स्केल में आप जाइए तो आपको फर्स्ट दिखेगा, फर्स्ट कॉलम में क्या दिखा रहा है वो? ब्यूफोर्ड नंबर सर. ओके, ब्यूफोर्ड नंबर. उसके बाद सेकंड कॉलम एवरेज विंड स्पीड. सर एवरेज विंड स्पीड नहीं दिखा. अगर आप ब्यूफोर्ड स्केल को देखोगे तो ब्यूफोर्ड स्केल में आपका वेदर कोड आया ओपन. इसके अंदर ब्यूफोर्ड स्केल जो दिया है उसमें वो आपको देता है, फर्स्ट इज द फोर्स. फोर्स 1, फोर्स 2, फोर्स 3. कौन सी फोर्स है ये? ब्यूफोर्ड स्केल
उसके बाद सर मीन विंड है, या स्पीड इन मीन विंड नॉट्स। स्पीड, या मीन विंड स्पीड देखिए कितनी दिखा रहा है फोर्स के अगेंस्ट। 0 में 0 दिखा रहा है, लेस देन 1। ओके, सेकंड फोर्स 1 पे दिखा रहा है सर 2 नॉट्स। करेक्ट। 4 to 6, फोर्स 2, हाँ सर Yeah. वो तो थर्ड कॉलम है ना। फोर्स 2 में दिखा रहा है विंड स्पीड 5 नॉट्स। Yeah, so column 1 is your force, force 1, force 2, force 3. Second आपका दिखाता है वो basically is the description, light wind, light breeze, and third column में वो आ जाता है आपका knots, wind की speed in knots, Yes, sir. meters per second, मीटर पर सेकंड। या हमने knots देखनी है। तो wind force 5 में अगर आप देखिए 70 to 21 knots, isn't it? तो हम जो है 70 to 21 में फॉल करते हैं, दैट मीन्स फोर्स 5। सो आपकी लॉग बुक अगर आपने लिखा, मैंने आपको बताया लॉग बुक में ऐसे एंटर होते हैं जहाँ वेदर कॉलम्स होती हैं, जहाँ आपने वेदर रिपोर्ट लिखनी होती है, वहाँ पे आपको इस टाइप का कॉलम मिलेगा, विंड डायरेक्शन एंड फोर्स। सो आई राइट द ट्रू विंड डायरेक्शन दिस एंड फोर्स बाय लुकिंग एट द सी, ब्रिज विंग से या अंदर से खड़े होके, यार इट इज फोर्स 4, फोर्स 5, फोर्स 6। वही लॉग बुक एंट्री मैंने यहाँ पे शो करनी है। अब if you have written the log books, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चांस नहीं मिला फिर थोड़ी प्रॉब्लम। Beaufort नंबर 5 होगा ना इसका सर? या force 5, Yes, sir. you won't write Beaufort number, you will write force 5. Answer is the logbook entry will be west by force 5. चलो ठीक है। अब नेक्स्ट एक और थोड़ी सी वेरिएशन वाला है, उसमें आपको फोर्स दिया है, स्पीड दी है एंड फनल स्मोक दिया है। फनल स्मोक इज ब्लोइंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो आपको फिर ट्रू विंड डायरेक्शन निकालनी है। सो कोर्स इज 3 to 0, कोर्स 3 to 0 एंड द शिप स्पीड इज 12 knots by 12 knots आउट इन ओपन सी, विंड फोर्स 4। ओपन सी में है, आपने देखी है विंड फोर्स 4। नाउ जैसे उसने लिखा विंड फोर्स 4, तो मेरे को यहाँ से क्या है, स्पीड मिल जाएगी ब्यूफोर्ट स्केल से। विंड फोर्स 4 में जाता हूँ, आपने उसकी मीन स्पीड देखनी है। ऐसा तो उसने वहाँ लिखा नहीं, लिखा होगा मीन स्पीड जो लिखी है, जैसे 17 to 21 थी। फोर्स 4 में जो दिखाता है, फोर्स 4 में कितनी स्पीड दिखाता है? Force 4 is about 13 knots। Yeah, 13 knots। yeah, 11 to 16। तो 11 to 16 knots है, बट यहाँ पे उसने लिख दिया क्वेश्चन में, he has given you in brackets force 4 16 knots, so we take 16 knots। अगर नहीं मेंशन किया फिर आप उसकी एवरेज वाली स्पीड ले सकते हो। Estimated by seeing the force 4, how we estimated? By looking at the sea। Smoke from the funnel observed to be blowing. Now smoke from the funnel observed to be blowing in 030 direction। funnel smoke आपका 030 में जा रहा है। So example मैं आपको बताता हूँ, this is your ship and ये आपकी funnel है यहाँ पे, and my smoke, if my smoke is blowing in this direction, अगर मेरा smoke इस direction में जा रहा है, so that means apparent wind कहाँ से आ रही है? 210। ये अपोजिट साइड से सर। करेक्ट। सो दैट मींस विंड जो है इस तरफ से आ रही है। सो 030 का अपोजिट हो गया 210। 210। या तो एपरेंट विंड है, ट्रू विंड नहीं है, बिकॉज स्मोक जो है आपका एपरेंट विंड उसको डिफ्लेक्ट करेगी। रिजल्टेंट विंड जिसे हम कहते हैं वो डिफ्लेक्ट करेगी। सो आपकी एपरेंट विंड जो है स्मोक को इस तरफ ब्लो कर रही है, दैट मींस द एपरेंट विंड इज आई एम एक्सपीरियंसिंग फ्रॉम 210। सो स्मोक ब्लोइंग फ्रॉम 030। What entry to be made in the weather report regarding wind direction and speed? तो यहाँ पे उसने पूछा what entry to be made in the weather report। अभी weather report में जो आपकी एंट्रीज है, अभी आपने weather reporting की नहीं है, चलो we will just find out what is the wind direction, true wind direction and true wind speed। weather report में we always give the true direction and true wind की speed। इसको जरा attempt कीजिए। course 320।
vertical line A 320 somewhere in this direction. Again you can keep your protractor like this and 320 will be, this is 270 or this is 360, 30 degrees इसमें से कम कर दीजिए, 10, 20, 30. So this is your 40, 320 ना, so 40 कम कीजिए, ये आपका 180 कहाँ कीजिए, this is 00, 10, 20, 30, 40. So 360 में से मैंने 40 डिग्रीज कम किए तो मेरे पास ये 320 की डायरेक्शन आ गई. तो बेसिकली हमने क्या एंगल बनाया, दिस एंगल इज 320. And what speed ship is doing? 12 knots. 320 by 12 knots. Direction. Now he says the wind estimated 16 knots, isn't it? So true wind is 16 knots, but डायरेक्शन नहीं पता. ट्रू विंड मेरे को फोर्स देखी मैंने क्या, इट इज फोर्स 16 नॉट्स की विंड है. तो आई हैव नो आइडिया यार विंड की डायरेक्शन क्या है, बट आई नो द डायरेक्शन ऑफ एपरेंट विंड. सो ये ए है. अब मेरे पास स्मोक इज ब्लोइंग 030 डायरेक्शन में वो ब्लो कर रहा है, इजंट इट? तो क्या करेंगे अब, एपरेंट विंड की कौन सी डायरेक्शन होती है? ए से रहेगी सर. करेक्ट. सो ए से ओ ए. सो ओ ए मैंने देखा है, द एपरेंट विंड इज कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन 210, बिकॉज़ द स्मोक इज ब्लोइंग इनटू 030 में है. तो अब मैंने यहाँ से 210 बनाना है. ये मेरा 180 है, तो 180 से हमने 210 तक जाना है. यहाँ मैं इसको 00 से मैच करा देता हूँ. एंड देन ये मेरा सेंटर पॉइंट, दिस इज 180, 190, 200, 210, isn't it? So आपकी जो विंड डायरेक्शन बनी, चलो थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं just to show. So this is your 210. ये टी मैंने निकाला था 12 नॉट्स, यहाँ पे मार्क कर दिया था. दिस इज द टी भी मेरे पास था 80. नाउ ये मेरे को पता है ट्रू विंड की जो स्पीड है ओ टी इज हाउ मच, 16 नॉट्स, इजंट इट? सो टी पे मैं अपनी कंपास रखता हूँ और 16 नॉट्स का जहाँ पे भी ये कंपास इसको काटेगी उस पर एक आर्क लगा दीजिए. तो बेसिकली आपकी अब जो है टी और ओ को, ये मेरे पास ओ आ गया, इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ. ये आपने डायरेक्शन देख लेनी है थोड़ी सी. आई थिंक इट इज कमिंग 165. सो मे बी इस पॉइंट को ये थोड़ा 12 नॉट ऊपर है, तो इट इज कमिंग एज 265 is the answer. So basically it will be something in this direction. ओटी कैसे निकाले सर? ओ ए सॉरी. या अब मेरे पास उसने ट्रू विंड की स्पीड दी है और मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी, ओ ए की लाइन ड्रॉ की थी. मेरे को नहीं पता इसकी स्पीड क्या है, मेरे को ट्रू विंड की स्पीड पता है. तो मैंने टी पे कंपास रखी और 16 नॉट्स इस लाइन पे काट दिया, ओ ए लाइन. जहाँ पे उसने ओ ए लाइन को काटा, दैट बिकम्स योर पॉइंट ए. नहीं, ये कितना डिग्री का है सर वो ओ ए? 30 डिग्री ना सर? स्मोक इज ब्लोइंग 030. यस सर. उसका अपोजिट, apparent wind is coming opposite Yes, from sir. smoke.
थैंक यू। स्मोक का अपोजिट इज द डायरेक्शन ऑफ द अपरेंट विंड, बट स्पीड नहीं बता। स्पीड के लिए मैंने यहाँ से 16 नॉट काटा। अब इसको आप मेजर कर लीजिए, दिस विल गिव यू 210 बाय जितनी भी इसकी स्पीड आती है, बाय मेजरिंग द डिस्टेंस। एंड अगेन इसकी डायरेक्शन कैसे मेजर करेंगे? अगेन वर्टिकल लाइन टी पे, या इसकी ट्रू विंड की डायरेक्शन चाहिए मेरे को। तो ये पॉइंट था, यहाँ से दिस इज बेसिकली टी, तो मेरे को ये एंगल चाहिए। दिस इज नॉर्थ साउथ, ये 180 है, तो ये 180 से कम, so this is coming 165 by 16 knots. This is the logbook entry. तो वेदर रिपोर्ट की एंट्री हम जब वेदर रिपोर्ट पढ़ेंगे तब हम आप समझ जाओगे, देन यू नो व्हाट एंट्री इज टू बी मेड इन द वेदर रिपोर्ट. So it is 165 by 16 knots is the answer. चलो क्लियर बच्चे यहाँ तक? एनीबडी एनी डाउट? I hope clear to all. सर एक बार और समझा दीजिए क्वेश्चन। ओके, इसी क्वेश्चन को सर ये विंड स्पीड का बता दो। सी स्टेट और फनल स्मोक को देखकर जो स्पीड एस्टिमेट करते हैं वो ट्रू आएगी ना? ओके ओके, आई विल कम बैक अगेन. ओके, आई विल स्टार्ट अगेन. अब मेरे को उसने कहा है कि बाय ऑब्जर्विंग द सी सरफेस यू ऑब्जर्व दैट इट इज विंड फोर्स 4. तो क्वेश्चन में भी दिया उसने कि बाय ऑब्जर्विंग द सी सरफेस इट इज एस्टिमेटेड दैट द विंड फोर्स 4 इज देयर. उसने ब्रैकेट में आपको 16 नॉट्स की स्पीड दे दी है. एग्जाम्पल अगर वो स्पीड नहीं देता, he says कि I estimated the by observing the sea state it is wind force 4. तब मेरे पास ब्यूफोर्ड स्केल में उसने दिया 11 to 16 नॉट्स, तो मैं उसकी एवरेज ले लेता हूँ 13 नॉट्स लेता हूँ. बट अगर उसने मेंशन किया 16 नॉट, he has mentioned in the question 16 knots, so I take the speed, the wind speed of true wind is 16 knots. डायरेक्शन नहीं पता मेरे को, but he has given me the wind speed of the true wind 16 knots. Force मेरे को पता है. Second he says funnel smoke was observed to be blowing in a direction of 030, which you can easily make out. Compass का आपके पास repeater है. You look at the funnel smoke and you see in which direction it is blowing. He has given in the question the wind or the smoke, the funnel smoke is blowing in a direction of 030. अब ये आपका जहाज है and यहाँ से funnel से if the smoke is blowing in this direction, में अगर स्मोक जा रहा है तो what I can estimate, यार ये मेरी डायरेक्शन 030 है, that means the wind is coming from this direction, apparent wind, तभी वो स्मोक को इस तरफ डिफ्लेक्ट कर रही. Yes sir. I got an idea. Here smoke blowing in 030 means the apparent wind is coming from 210. उससे मेरे को ये आइडिया लग गया. अब मैंने क्या किया, अपना कोर्स ड्रॉ किया 80. I know the direction of the apparent wind. मैंने A से ये 210 ये वाला एंगल ड्रॉ किया. दिस इज 180, यहाँ से 30 डिग्री मैंने ये 210 ड्रॉ कर दिया. आई डोंट नो वेयर द पॉइंट O लाइज, आई जस्ट ड्रॉ दिस लाइन. ओके, फोर्स मेरे को पता था 80, उसकी स्पीड पता है, मैंने 12 सेंटीमीटर इसको काटा. अब T पे मैं अपनी कंपास रखता हूँ एंड 16 नॉट्स जो मेरे पास स्पीड है ट्रू विंड की, उसको मैं 16 नॉट्स की आर्क लगाता हूँ. जहाँ पे भी जिस जगह भी ये इसको काटती है इस लाइन को, दैट पॉइंट बिकम्स योर O. बेसिकली OT इज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द ट्रू विंड. जो मैंने 16 नॉट्स लगाई है ट्रू विंड की स्पीड ही लगाई है. O आपका इस लाइन पे आ जाएगा. अब आपकी ट्रायंगल पूरी हो गई एंड नाउ यू नो OT, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रू विंड. 165 मैंने मेजर किया, स्पीड मेरे को पता थी 16 नॉट्स, उतनी मैंने काटा था. एपरेंट क्लियर? Yes sir. चलो गुड. चलो टेक अ ब्रेक, चाय पी लीजिए. आपकी नेक्स्ट क्लास एंड देन वी, कल है आपके साथ क्लास मेरी? नो